جس جماعت نے عام انتخابات میں حصہ نہیں لیا، ان کے کسی کینڈیڈیٹ نے نشان کے اوپر کنٹیسٹ نہیں کیا، اسی وجہ سے نہ قومی اسمبلی اور نہ ہی کسی صوبائی اسمبلی میں ان کا کوئی منتخب رکن آیا ہے۔ اور جب ہم نے آج سیاسی جماعتوں نے اور سیاسی جماعتوں کے ان امیدواران خواتین اور اقلیتی نشستوں کے امیدواران نے بھی اپلیکیشنز فائل کر رکھی تھی کہ جو درخواست دائر کی ہے سنی اتحاد کونسل نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، ان کو فریق نہیں بنایا گیا اور بیہائنڈ دیئر بیک یعنی کہ ان سے قطع نظر کر کے وہ فیصلہ لینا چاہتے ہیں۔ تو تمام درخواستیں متحدہ قومی موومنٹ کی، پاکستان پیپلز پارٹی کی، پاکستان مسلم لیگ نون کی جو کینڈیڈیٹس ہیں خواتین، ان کی جو درخواستیں ہیں وہ الیکشن کمیشن نے آج یکجا کر دی ہیں۔ اور ایسی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے پھر سنی اتحاد کونسل کے جو پٹیشنر ہیں اور ان کے لائر ہیں علی ظفر صاحب، انہوں نے وقت مانگا ہے الیکشن کمیشن سے ایڈجرنمنٹ کے جی کل کے لیے پھر آپ اسے فکس کر دیں، ہم کاپیز بھی دیتے ہیں اور کاپیز لے بھی لیتے ہیں اور تیار ہو کے آئیں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑا شور مچایا جا رہا ہے کہ جی الیکشن کمیشن فیصلہ نہیں کرتا، اسمبلیوں میں نہیں جاتے کہ جی اسمبلیاں نامکمل ہیں، لیکن جب بات جوڈیشل ڈیسیژن کی آتی ہے تو خود انہوں نے التوا مانگا اور انہوں نے کہا کہ اسے کل کے لیے فکس کر دیا جائے۔ باہر کیف اس پہ قانونی پوزیشن بہت واضح ہے۔ جو مخصوص نشستیں ہیں آئین کے آرٹیکل 51، آرٹیکل 106(3) اور آرٹیکل 224(6) کے پرووائزوں کے تحت اور الیکشن ایکٹ کے سیکشن 104 اور رول 92 کے تحت صرف ان سیاسی جماعتوں کو ملے گی جن سیاسی جماعتوں کی نمبر 1 پارلیمنٹری پریزنس ہے، یعنی وہ جیت کے الیکشن اسمبلیوں میں آئے ہیں، اور جن سیاسی جماعتوں نے مقررہ وقت پہ ان مخصوص نشستوں پہ اپنے امیدواران کی فہرستیں جاری کیں، انہیں ٹکٹس جاری کیں اور ان کے کینڈیڈیٹس نے الیکشن کمیشن میں ریٹرننگ آفیسرز کے پاس اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا رکھے ہیں۔ یہ ایک انہونی بات ہے کہ ایک سیاسی جماعت جس نے انتخابات میں حصہ نہیں لیا اور اگر لیا تو عوام نے اسے ریجیکٹ کر دیا اور اسے ایک سیٹ بھی نہیں دی سنی اتحاد پاکستان کو، اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ آزاد لوگوں نے جوائن کر لیا ہے، لہٰذا ہمیں بھی مخصوص نشستیں دی جائیں۔ یہ نہ آئین میں اس کا کہیں گنجائش ہے اور نہ ہی جو الیکشن ایکٹ اور اس کے رولز ہیں اس میں گنجائش ہے۔ بار کیف کیونکہ میٹر سب جوڈس ہے تو کل باقی جو سارے معاملات ہیں وہ کمیشن میں ہوں گے۔ یہ کچھ تھوڑی سی ایسی تفصیلات ضروری تھی، اور بالخصوص یہ بات کہ آپ باہر بیٹھ کے تو کہتے ہیں کہ جی بڑا ظلم ہو گیا جی، فیصلہ نہیں ہو رہا جی، سیٹیں نہیں الاٹ کی جا رہی، اور جب آئین اور قانون کے تحت اس معاملے کو ٹیک اپ کیا گیا اور جو متعلقہ فریقین ہیں جنہیں ہم نیسیسری پارٹی کہتے ہیں، یعنی کہ جو ضروری فریقین ہیں، جن لوگوں نے خواتین نے اور غیر مسلموں نے سیاسی جماعتوں کی طرف نامینیشن پیپرز جمع کروا رکھے ہیں اور ان کو سیٹس مل سکتی ہیں، ان کے آنے پہ بھی احتجاج کیا جائے کہ جی نہیں آپ انہیں سنیں نا۔ آرٹیکل 10A جو ہے کانسٹیٹیوشن کا، وہ ہر شہری کو حق دیتا ہے کہ اگر کسی بھی مقدمہ میں یا پروسیڈنگز میں اس کے کسی قسم کے حقوق جو ہیں ان کے بارے میں کوئی فیصلہ ہونا ہے تو اس کو رائٹ آف ہیئرنگ دیا جائے۔ تو الیکشن کمیشن نے آج ان ساری درخواستوں کو یکجا کیا اور انہوں نے کل کے لیے فکس کیا ہے۔ بہت شکریہ جی۔ میں اس میں تھوڑا سا صرف یہ ایڈ کرتا چلوں کہ ہمیشہ کی طرح تحریک انصاف قانون کو بائی پاس کر کے، آئین کو پامال کر کے ایک مذموم کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے پارلیمان کے اندر ریزرو سیٹیں حاصل کی جائیں۔ اب انہوں نے بغیر سوچے سمجھے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کر لیا۔ اب یہ تو دیکھنا چاہیے تھا نا کہ پارلیمان کے اندر کس سیاسی جماعت کی پریزنس ہے۔ اگر تو سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں ملی ہوتی اور سنی اتحاد کونسل نے مقررہ وقت کے اندر ریزرو سیٹوں کی جو فہرست ہے وہ جمع کرائی ہوتی اور اس فہرست کے ساتھ ساتھ فہرست میں جو موجود نام ہوتے انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کرائے ہوتے۔ اب جو قانون کی منشا ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی لسٹ جمع کرائی جائے مخصوص نشستوں کی، خواتین کی، اقلیتوں کی، پھر اس پارٹی لسٹ میں جتنے لوگ شامل ہیں وہ
शेड्यूल के मुताबिक, इलेक्शन कमीशन के जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी दाखिल कराएं, उन कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की जाए और उसकी जांच पड़ताल के बाद वो कागज मंजूर किए जाएं तो ये रिजर्व सीट्स का, मखसूस नशिस्तों का प्रोसेस मुकम्मल होता है। आप आइन को भी बाईपास करें, कानून को भी बाईपास करें और पहले देखें, सिर्फ आपका अपना कसूर है कि आपका सिंबल जो है वो लिया गया। आप इलेक्शन अगर कानून के मुताबिक करवाते, उसकी तशहीर करते, अपने तमाम मेंबर्स को इनेबल करते कि वो इलेक्शन पर पहुंच सकें और कानून और आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाते तो कुछ ना होता। आप कानून की भी खिलाफ वर्जी करते हैं, आइन को भी पामाल करते हैं और उसके बाद मीडिया के सामने मजलूमियत का रोना रोते हैं। आज मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि अली जफर साहब इतने संजीदा वकील हैं, इतने सीनियर वकील हैं और वो जो पार्लियामान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनका राइट है वो इन मखसूस नशिस्तों के हवाले से अपनी बात इलेक्शन कमीशन के सामने रख सकें, इतनी बर्दाश्त नहीं है कि वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थे। हमारा राइट है, हमारी पार्लियामान के अंदर प्रेजेंस है और ये हक बनता है कि पार्लियामान के अंदर जो जमातें मौजूद हैं जिन्होंने मुकर्ररा वक्त के अंदर अपनी मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तें जमा कराई हैं कि उनको उसके मुताबिक इन मखसूस नशिस्तों का शेयर दिया जाए। अब ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ना पंजाब में मौजूद है ना नेशनल असेंबली में मौजूद है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो हामिद रजा साहब हैं उन्होंने अपनी ही पार्टी के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ा, उनका आज़ाद सिंबल था, आज़ाद हैसियत से लड़े। नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट की लेजिस्लेशन ब्रांच की तरफ से जो MNAs की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उस नोटिफिकेशन के अंदर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मौजूद ही नहीं है और नेशनल असेंबली के सेक्रेटरी को या स्पीकर को अभी तक कोई दरखास्त नहीं दायर की गई ऑब्जेक्शन दायर करते हुए कि जी हमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सीट यहाँ मौजूद है, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की टिकट पे इलेक्शन ही नहीं लड़ा गया। अब ये जोर जबरदस्ती करके, कानून की खिलाफ वर्जी करके, आइन को पामाल करके मखसूस नशिस्तें हासिल करने की जो ये साजिश की जा रही है, ये कामयाब हो ही नहीं सकती। आप कानून के दायरे से बाहर जा रहे हैं, आप कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए कह रहे हैं कि तमाम कानून को रोन दिया जाए और आपकी मंशा के मुताबिक और आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपको मखसूस नशिस्तें दे दी जाएं। वो मरला गुजर चुका, उसका टाइम खत्म हो चुका। आपने ना फहरिस्त जमा कराई, ना कागजात नामजदगी जमा कराए, ना आपकी जमात पार्लियामान में मौजूद है। कोई एक बात ही हो जाती तो चले आपका केस कोई आर्ग्यूबल केस बन जाता। ये तो ऐसे ही है कि एक वकूआ हुआ ही नहीं और उसकी आप FIR दर्ज करवाना चाहते हैं, तो ये इस तरह काम नहीं होगा। कानूनी तौर पे आप बिल्कुल गलत हैं, आपके पास कानूनी जवाज नहीं है, आपके पास आईनी जवाज नहीं है, आपके पास इखलाकी जवाज नहीं है कि आप इस केस में आर्ग्यू भी कर सकें। तो मैं समझता हूं कि ये ओपन एंड शट केस है, सब जुडिस है। इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि इस केस का फैसला इंसाफ के मुताबिक हो। जो कैंडिडेट्स नेक्स्ट इन लाइन हैं, जो कैंडिडेट्स नेक्स्ट इन लाइन हैं प्रायोरिटी लिस्ट में दीगर जमातों के, तो जाहिर है उनकी एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी है कि जब इसका कोटा रिवाइज होगा, क्योंकि ये सीट्स प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन पे सिर्फ उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए मखसूस की गई हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शन का हिस्सा होती हैं, आम इंतखाबात में वोट हासिल करती हैं और अपने वोट के तनासुब से ये सीटें उन्हें जाती हैं। ये पहली दफ़ा सुनेंगे हम और ये पहली दफ़ा मोजज़ा होगा कि एक सियासी जमात इलेक्शन के बाद, जिसने इलेक्शन में कंटेस्ट भी नहीं किया, कुछ आज़ाद लोगों को शामिल कर ले अपने बीच में और कहे कि जी अब वो जो कौमी धारे वाली नशिस्तें हैं वो भी उन्हें दी जाए। ये मुमकिन नहीं है, ये ना कानून की मंशा है, ना ये आइन की रूह है। जो रेलिवेंट आर्टिकल्स हैं वो पढ़िए, उसमें बिल्कुल वाज़ेह है। उसमें वो कैंडिडेट्स जो पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, जो नेक्स्ट इन नंबर हैं, जैसे मुस्लिम लीग नून को अगर 16 सीटें या 17 सीटें एलोकेट हुई हैं नेशनल असेंबली में, तो उन्होंने फहरिस्त 17 से ज़्यादा की जारी की हुई है। तो नंबर 18, 19, 20 वाली जो हमारी उम्मीदवारान हैं, उनका ये कानूनी हक है कि उन्हें डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि फिर वो कोटा जब रिवाइज होगा तो वो 4.50 से 3.75 या 4 पे आएगा। तो ये उसके पीछे लॉजिक है। बाप पार्टी ने बाद में लिस्ट जमा कराई थी, उनमें एक नंबर ऐड कर दिया गया था मखसूस हिस्सों पे, नंबर 1। नंबर 2,
KPK में PTI की मेजोरिटी है जो ज़्यादा रकीन है, अगर वहाँ पर उनको नशिस्तें नहीं दी जाती तो आईनी भाव पैदा नहीं होता, क्योंकि दूसरी जो अपोजिशन पार्टी है उनके पास नशिस्तें नहीं है। मैं अर्ज कर दूं, जिन सियासी जमातों ने इलेक्शंस के टाइम पे अपने उम्मीदवारान की मखसूस नशिस्तों पे कागजात जमा करवाए, उसके बाद उन्होंने कोई ना कोई सीट जीती, उनकी प्रेजेंस है, पार्लियामेंट्री प्रेजेंस है कौमी या सूबाई असम्बली में, वो अगर अपने कोटा से ज़्यादा नशिस्तें जीत चुके हैं तो वो उनको एक गुंजाइश देता है, कानून प्रोवाइजो है आर्टिकल 224 के क्लॉज 6 का, जो कहता है कि इन केस ऑफ डेथ, रेजिग्नेशन और फॉर एनी अदर रीज़न, किसी और वजह से अगर वैकेंसी दोबारा अकर होती है तो आप सप्लीमेंट्री लिस्ट दे सकते हैं। उसी वजह से माजी में भी उन सियासी जमातों को जिनके ज़्यादा लोग आए, या जैसे मैं आपको ताज़ा मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2 ख़वातीन नशिस्तों के ऊपर मखसूस में भी नाम रखे थे और उन 2 ख़वातीन ने जनरल इलेक्शन भी लड़ा सिंध से, वो कामयाब हो गई। उन्होंने अपने जो जनरल इंतखाबात थे, आम इंतखाबात की नशिस्तें अंदरून सिंध से वो रिटेन की और मखसूस नशिस्तों पे उन्होंने अपना क्लेम नहीं किया, तो उनके वो 2 नशिस्तें निकल के जो अगले 2 नंबर से वो उनकी जगह पे आ गई। आप देखिए कि अगर KP में खासतौर पर देखा जाए तो जिस पार्टी ने 2 नशिस्तें जीते होंगी उसको 6 नशिस्तें मिलेगी, ये भी आइन के साथ और कानून के साथ एक मजाक ही होगा। मजाक इसलिए नहीं होगा कि पहली बात तो ये है कि ये डिसीजन इलेक्शन कमीशन ने करना है और उसके बाद यकीनन ये मामला अदालतों में जाएगा। देखिए, कानून के तालिब इल्म के तौर पे कानून ने चलना है किताब के मुताबिक, कानून ने किसी की ख्वाहिश के मुताबिक या किसी मफरूज़े पे नहीं जाना। कानून में किसी हद तक, अगर मैं क्लैरिटी से एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ बात करूं, तो कानून में मोरालिटी भी नहीं आएगी। लेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रिवेल करेगा, आइन के जो शिक्के हैं वो प्रिवेल करेगी। जो स्कीम बनाई गई उस स्कीम के मुताबिक ये नशिस्तें ऐसी सूरत हाल में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं जा सकती, हमारा ये कहना है। अब ये जानी है या नहीं जानी, ये फैसला मैं नहीं करूँगा, ये फैसला मेरी पार्टी की मंशा के मुताबिक नहीं। हमने अपने मारूज़ात और अपने दलाइल इलेक्शन कमीशन के सामने रखने हैं। कल आज भी कुछ तजावीज़ पेश की कि जी ये सूरत हाल में ये हो सकता है, और ये फ़ैसला जो है वो जुडिशल साइड पे इलेक्शन कमीशन करेगा। जो फरीक उस फैसले से इख्तलाफ करे, एग्रीव्ड हो, मुतासरा फरीक हो, वो हम भी हो सकते हैं, वो दूसरा फरीक भी हो सकता है, वो कानून के तहत रेट में या अपील में जा सकता है। सर साहब, नामुकम्मल असेंबली जो है, नामुकम्मल, अभी तमाम असेंबली नामुकम्मल है, उसके बावजूद ये हुकूमत कैसे बन रही है? इसका आईनी और कानूनी क्या जवाब? आप मुझे ये बताएं कि पूरे इलेक्शन एक्ट में या आइन में कहीं पे नहीं लिखा कि अगर 5, 10, 20, 30 जो सीटें हैं वो खाली रह जाती हैं तो असम्बली नामुकम्मल है। मैं आपको उसकी एक आसान सी मिसाल देता हूँ, शायद जो आपके नाजरीन हैं वो ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड कर सके। पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 9 ऐसे अरकान सूबाई असम्बली हैं जो कौमी असम्बली में भी मुंतखब हुए हैं, यानी कि उन्होंने कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली दोनों जगहों से इलेक्शन लड़ा। उन 9 के 9 अरकान ने सूबाई असम्बली में हलफ नहीं लिया, वो कौमी असम्बली में आएंगे। उसमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी हैं, उसमें सरदार गुलाम अब्बास भी हैं, उसमें अवैस लगारी साहब भी हैं, बहुत सारे नाम हैं। एहसन इकबाल साहब भी हैं, वो सूबा भी जीते हैं, कौमी भी जीते हैं। राना तनवीर साहब हैं, सूबा भी जीते हैं, कौमी भी जीते हैं। अब वो 9 नशिस्तें हैं। अगर ये बहुत टाइट कंपटीशन भी होता, 5 वोटों से वज़ीर आला का होता मसला, तो 9 नशिस्तें चली जानी थी मुस्लिम लीग की। मैं इस बात पे स्टे नहीं मांग सकता कि असम्बली नामुकम्मल है क्योंकि 9 लोग नहीं हैं। खुदारा स्कीम को समझने की कोशिश करे। पिछले साल 2 साल पीछे चले जाते हैं। अप्रैल 2022 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अदम एतमाद का सामना करना पड़ा तो वो मैदान छोड़ के भागे थे। पहले वो छुपे थे एक मफरूज़े पे, एक रूलिंग दी गई जिसके ज़रिए कौमी असम्बली तहलील की गई, आइन शिकनी की गई और सुप्रीम कोर्ट ने उसे बहाल किया। अब उनके पास मतलूबा तादाद नहीं थी, तो आप सब लोगों के सामने उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे 146 अरकान ने एन ब्लॉक इस्तीफ़े दिए और प्रिजाइडिंग ऑफिसर कासम सूरी साहब ने वो इस्तीफ़े कबूल कर लिए, एक्सेप्ट कर लिए।
وہ 146 لوگ نکل گئے 342 کی نیشنل اسمبلی سے. کیا ان کی غیر موجودگی میں اسپیکر منتخب ہوئے؟ راجہ پرویز اشرف صاحب. ڈیپٹی اسپیکر درانی صاحب منتخب ہوئے. اسی ایوان نے میاں شہباز شریف کو وزیر اعظم منتخب کیا. 2 سال 16 ماہ یا 18 ماہ وہ حکومت قائم رہی. کسی عدالت نے، سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس نے کہا کہ یہ اسمبلی نامکمل ہے. تو خدا کے لیے یہ تازہ ترین مثالیں ہیں.